Hi guys, this is your just मैम and अब आज हम बच्चों को ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में we have to see about the reactive intermediate that is carbene. Okay, carbene कुछ अलग तरह की reactive intermediate है. They are different from the carbocations, free radical and carbanions. Okay, so let us see what are carbenes. तो बच्चों कार्बेन क्या होते हैं? कार्बेन में हमारे पास जो एक कार्बन होता है, ओके, इस कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. Okay, carbon is having 6 valence electrons. So out of this 6 valence electrons, I can write down like this. Out of this 6 valence electrons, in carbene, 2 are involved in bonding and 2 electrons are present in non-bonded state. Okay, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बीन कहते हैं. तो जो हमारा कॉमन कार्बीन है, वो है हमारे पास मिथिलीन, दिस वन. CH2 और यहाँ पर दो हमारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है. ओके, तो ये हमारा क्या है? मिथिलीन कार्बन. इसे हम क्या कहते हैं? मिथिलीन कार्बन. और बच्चों ये जो कार्बन होता है ये न्यूट्रल स्पीशीज है. ओके, इट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज. तो ये बहुत ही अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो कई रिएक्शंस के दौरान बन सकता है और आई मस्ट से बनता है. ओके, तो ये जो हमारा कार्बन है ये सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है. ओके, इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है आपके जो दोनों बॉन्ड है वो किसी हेलोजन से जुड़े हो. ठीक है, कार्बन जो है वो हेलोजन से बॉन्डेड हो आपका, या फिर आपका कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ कोई हेलोजन हो. इस तरह का कार्बन भी हमारे पास हो सकता है. So basically what are carbons? They are the reactive intermediates in which carbon is having 6 valence electrons. So out of 6 valence electrons, 4 electrons are in the bonded state. They are bonded with some other atom by a single bond, and 2 electrons are present in the non-bonding state. And they are the neutral species. Okay, वो neutral species होते हैं. जो carbons होते हैं वो हमारे कैसे हैं? Neutral species होते हैं. तो ये जो हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो बहुत अनस्टेबल है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बीन कहते हैं. ओके, दिस रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज नोन एज कार्बीन. ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये कार्बीन जनरेट कैसे होता है. ठीक है, इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन एंड हाउ इट कैन बी जनरेटेड इन डिफरेंट रिएक्शन. तो लेट अस सी कि हाउ कार्बीन कैन बी generated. Okay, so students, first let us understand the generation of carbon or formation of carbon, that how carbons can be formed. Okay, so first they can be formed by photo decomposition of diazo compounds. जो हमारे डायएजो कंपाउंड्स कुछ होते हैं जिसमें दो नाइट्रोजन के एटम हमारे बॉन्डेड स्टेट में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. दे आर द डायएजो कंपाउंड्स. एजो जो वर्ड इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द नाइट्रोजन ओनली. ओके, तो उसका अगर हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करेंगे, ओके, और थर्मल भी कर सकते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन इज आल्सो पॉसिबल. फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH2NO. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड डायएजोमीथेन. ठीक है, जब इस डायएजोमीथेन पर हम लाइट पास करवाते हैं, when there is reaction in presence of light, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और हमें यहाँ पे मिथिलीन कार्बन मिलता है. We get methylene carbene. So this is the one method by which we can generate these carbenes, intermediate carbenes. Let us see one more example. Suppose if I can replace one hydrogen with one R group, RCH and 2. Okay. So if I will pass light on this compound, again nitrogen will release and we will have carbon. So these non-bonded electrons, they are present on the carbon. So more correctly I can represent this carbon like, okay, so it will be an alkyl carbon. One alkyl group is attached at the one valency of the carbon. So this is the alkyl carbon. So this is one method by which we can prepare the carbenes. Carbenes can be formed during a reaction.
Okay, by the photochemical decomposition of diazo compounds, we can prepare the carbene. The other method to generate carbene is carbenes can be generated by ketenes, by pyrolysis of by decomposition of ketenes. Let us see how we can generate. Okay, that is by decomposition of ketene. ओके जैसे मैं एक सबसे छोटा हमारा जो कीटोन है उसका एग्जांपल ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड so this is a ketene so when ketene will be given sunlight or when it will be given the heat energy okay it will undergo decomposition यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकलती है और यहाँ पे हमारा बनेगा कार्बन जिसमें हमारे कार्बन के पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और 2 इसके पास बॉन्ड्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में बिजी रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री रहते हैं नॉन बॉन्डेड स्टेट में रहते हैं तो इस तरह का जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ठीक है इसे हम क्या कहते हैं कार्बीन कहते हैं जो मिथाइल है वो सबसे सिंपल कार्बीन है और जो आपका कार्बन की जो 2 वैलेंसीज है वो सब्स्टिट्यूटेड हो सकती है ठीक है इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एन हैलोजन और इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एन अल्काइल ग्रुप ओके इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बेसिकली कार्बन में आपके जो कार्बन है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसके नॉन बॉन्डेड रहेंगे बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में बिजी रहेंगे ओके so this is about the generation of carbenes but बच्चों ये जो carbenes है it is not of one type carbenes can be of the two types which is based on the spin of these two electrons okay carbenes are classified into two categories which is based on the spin of these two unpaired electrons or I can say spin of this non-bonded electron so let us see what are the two types of carbenes. So students, we are having two types of carbenes which are based on the spin of the non-bonding electrons present of the carbon atom. So out of two types of carbenes, the first type is singlet. Singlet carbene. So what is singlet carbene? Let us see. What is singlet carbene? When both the electrons are present in same orbital and have opposite spin. ठीक है जब हमारे कार्बन के जो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेम ऑर्बिटल में होंगे और उनकी जो स्पिन है वो कैसी होगी आपकी अपोजिट होगी मतलब दोनों में से एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहते हैं सिंगलेट कार्बन कहते हैं दैट इज नोन एज द सिंगलेट कार्बन व्हाई वी आर नोन एज द सिंगलेट कार्बन क्योंकि इस तरह के कार्बन का जब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे ओके सो लेट अस कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी of this type of carbene तो हमारा जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास the formula of spin multiplicity is what 2 that is summation of spin quantum number plus 1 okay this is the formula for the spin multiplicity so let us find out 2 okay so we are having two electrons which are present in the same orbital तो आपको पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता है कि अगर आपके दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का आपको क्वांटम नंबर प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर ऑफ कोर्स क्या होगा माइनस हाफ प्लस 1 तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा ओके और स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल कम 1 दैट्स व्हाई इट इज सिंगलेट कार्बन तो हमारे जो सिंगलेट कार्बन होते हैं बेटा इनका जो शेप होता है वो बैंड शेप होता है ठीक है दे आर हैविंग द बैंड शेप जैसे अगर मैं बात कर लेती हूँ हमारे मिथाइल कार्बन की तो इस तरह का शेप आपके मिथाइल कार्बन का होगा ओके एंड इट इज हैविंग अ बॉन्ड एंगल ऑफ 103 डिग्री इसमें हमारी जो बॉन्ड एंगल है मिथाइल कार्बन की दैट इज 103 डिग्री एंड बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड लेंथ सॉरी इट इज 1.12 एंगस्ट्रॉम दिस इज द बॉन्ड लेंथ इन दिस मिथाइल कार्बन नॉर्मली आपके जो सिंगलेट कार्बन होते हैं इनके जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री टू 120 डिग्री के बीच में रेंज करेंगे आपके
ओके, अब जब हम इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा तो बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द एटम्स। तो 90 से 920 डिग्री के बीच में यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल रहेगा। ओके, so this is the shape of the single H carbene. Since the single H carbenes are very unstable, they are very unstable and they are very much reactive. So they are also called hot carbene. Okay, single H carbenes को हम क्या कहते हैं? हॉट कार्बन्स भी कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बन जिसमें हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन के ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होती है। ओके, इफ वन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज अदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दिस इज नोन एज द सिंगल एज कार्बन। नेक्स्ट हमारा जो टाइप होता है कार्बन का दैट इज ट्रिपलेट। ओके, दैट इज द ट्रिपलेट कार्बन। So let us quickly see what is triplet carbene. So students, the next type of carbene is triplet carbene. So what is triplet carbene? When both of the electrons are present in different orbitals and they have parallel spin. जब हमारे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है आपके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है आपके कार्बन के ऊपर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और इनकी जो स्पिन है वो पैरेलल होगी। ओके, दोनों की स्पिन सेम होगी। अगर दोनों एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज। वैसे जनरली दोनों की जो स्पिन है वो क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है, पैरेलल स्पिन होती है दोनों की। ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कार्बन कहते हैं। तो ट्रिपलेट कार्बन के लिए भी हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर ट्रिपलेट कार्बन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं 2s plus 1. Okay, so when we put the values, so 2 that is plus half plus दोनों की स्पिन जो है वो सेम है तो दोनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। ओके, प्लस हाफ प्लस 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आती है? ओके, तो इसीलिए ट्रिपलेट कार्बन को हम ट्रिपलेट कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है? यहाँ पे 3 है। जो आपका ट्रिपलेट कार्बन होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है हमारा मिथाइलिन, इसका जो शेप होता है वो लीनियर ही होता है और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ओके, इट इज हैविंग द लीनियर शेप ओनली, इसमें कोई बेंड शेप नहीं होता है। जो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स, बोथ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो बॉन्ड है वो आपके किस में रहते हैं? लीनियर ज्योमेट्री में रहते हैं। So they are having the bond angle of 180 degree. So this is about the triplet carbon. Okay, so we are having two types of carbon which are based on the spin of the non-bonding electrons present of the carbon. सिंगलेट में जो दोनों आपके इलेक्ट्रॉन है वो सेम ऑर्बिटल में होंगे और दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट रहेगी, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और ट्रिपलेट में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं और दोनों की स्पिन पैरेलल रहती है। ठीक है, दोनों जो होते हैं वो आपकी सेम स्पिन में ही घूमेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। तो ट्रिपलेट कार्बन थोड़ा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द सिंगलेट, तो इट इज आल्सो नोन एज कूल और कोल्ड कार्बन। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो हमारा सिंगलेट कार्बन है उसे हम क्या कहते हैं? हॉट, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव इन द नेचर, इट इज वेरी अनस्टेबल। एंड दिस ट्रिपलेट कार्बन इज नोन एज कोल्ड कार्बन। So these are the two types of carbon. Now we have to see that which type of reactions are given by the carbons. कार्बन किस तरह की रिएक्शंस देते हैं और वो किस तरह की रिएक्शंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके हमें प्रोडक्ट्स देते हैं। So this is the next thing which we have to see about the carbon, that which type of reactions are there, which carbons are involved. Okay,
So students, first type of reaction which can be given by carbene is, the first is addition with alkenes. जो आपके कार्बन है वो एल्किन पर ऐड हो सकते हैं, और जब आपके कार्बन एल्किन्स पर ऐड होते हैं तो हमें साइक्लो एल्केन मिल सकता है. वी कैन गेट साइक्लो एल्केन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं सबसे पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ इथेन का, जो हमारा सबसे सिंपल एल्कीन है. तो इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे इट इज इथेन. और यहाँ पर हम एक कार्बन की रिएक्शन करवा रहे हैं, हमारे मिथाइल कार्बन की. तो ये जो आपका कार्बन है, ये दोनों कार्बन पे जाकर बॉन्ड बना लेगा अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन देगा. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं कि आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन. तो कार्बन जो है वो एल्कीन्स पर ऐड होके आपको क्या दे सकता है, साइक्लोप्रोपेन दे सकता है. इट कैन गिव यू द साइक्लोप्रोपेन. अगर हम बात करते हैं बच्चों किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले एल्कीन की, ऐसा एल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, अगर हम उस पे कार्बन को ऐड करवाते हैं, तो जो एडिशन है वो डिपेंड करेगा आपके कार्बन के नेचर पे, कि कार्बन ट्रिपलेट है या सिंगलेट है. उस पर आपका जो एडिशन है वो डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है मैं भी आपको बताती हूँ. जैसे मेरे पास सपोज एक ये सिस एल्कीन है ना, सिस और ट्रांस. ठीक है, सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ऐसे एल्कीन्स जिसमें आपके जो सेम ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पर होते हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर है और दोनों कार्बन, दोनों R ग्रुप सेम साइड पर है. इसे हम क्या कहते हैं, सिस एल्कीन कहते हैं. तो एक मेरे पास सिस एल्कीन है और इस पर एडिशन हो रहा है हमारे कार्बन का, लेकिन मेरा कार्बन कैसा है, सिंगलेट. आई एम हैविंग सिंगलेट कार्बन. तो सिंगलेट कार्बन का नेचर क्या होता है बेटा, कि अगर वो सिस से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट भी आपको सिस ही मिलेगा. देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी क्या बनेगा, सिस बनेगा. ये जो कार्बन है इन दोनों कार्बन से आपके अटैच हो जाएगा CH2 लाइक दिस. तो जो प्रोडक्ट है वो भी आपको कैसा बनेगा, सिस मिलेगा, है ना. सिस सिस साइक्लोएल्केन ही हमको मिल रहा है. यहाँ पे दोनों दोनों जो R है वो सेम साइड पर ही है. आपका जो प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज नहीं हुआ है. ओके, जो आपके मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट था, जो एटम्स का अरेंजमेंट था डबल बॉन्ड के आसपास, वो चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, इसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं बेटा, जब आपके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है. तो आपका जो सिंगलेट कार्बन है वो सिस के साथ सिस प्रोडक्ट ही देगा. और इसी प्रकार अगर हम हमारे सिंगलेट कार्बन की रिएक्शन ट्रांस से करवाते हैं, ठीक है, इफ वी विल डू द रिएक्शन विद ट्रांस, तो इस तरह का जो एल्कीन होता है जिसमें हमारे जो सेम ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस. ठीक है, इस तरह के एल्कीन को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे. तो जब ये ट्रांस से रिएक्शन करेगा आपका कार्बन, ओके, कौन सा कार्बन, सिंगलेट कार्बन, तो आपको प्रोडक्ट भी ट्रांस ही मिलेगा. ठीक है, वी विल गेट द ट्रांस प्रोडक्ट ओनली, दिस CH2 बीच में. ठीक है, इन दैट केस वी विल गेट द ट्रांस प्रोडक्ट ओनली. ओके, तो ये सिंगलेट कार्बन का नेचर है. वहीं अगर यही रिएक्शन में एक ट्रिपलेट कार्बन से हो रही हो तब क्या होगा. ठीक है, सिंगलेट कार्बन की तो हमने देख ली कि सिंगलेट कार्बन जो है वो मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. बट अगर यही रिएक्शन किसी सिस एल्कीन की में अगर ट्रिपलेट कार्बन से होती है तब क्या होता है, लेट अस सी. So better let us see what happened if we will add the triplet carbon to the alkene. So I am having this alkene. This is the cis alkene of course. तो जब हम इस cis alkene पे रिएक्शन करवाएंगे हमारे कार्बन की, ओके, तब क्या होगा. और अगर ये आपका कार्बन कैसा है, अगर मैं इसको ऐसे शो करूं कि हमारा एक ट्रिपलेट कार्बन, तो इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बन हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं बनेगा. यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे CH2 मैंने ऐड कर दिया. यहाँ पर आपको आपका सिस एंड ट्रांस
दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर। हियर वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ बोथ। तो आपका जो ट्रिपलेट कार्बन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। आपका ये जो कार्बन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं देगा। ट्रिपलेट कार्बन हमें दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर देगा, सिस का भी और ट्रांस का भी। ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन की रिएक्शन में डिफरेंस है व्हेन दे आर अटैचिंग ऑन द एल्कीन्स। ओके, एल्कीन्स हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे कार्बन्स देते हैं, दे डू रिएक्शन विद कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक है। दे डू रिएक्शन विद द कॉन्जुगेटेड डाइईन्स एंड इवन with cumulative diene also they do the reaction। ओके, मतलब हमारे पास कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें दो डबल बॉन्ड पास पास में है। अगर हमारे पास कोई क्यूमुलेटिव डाइईन है लाइक दिस सी डबल बॉन्ड हियर आई विल बी हैविंग CH2 CH2। ओके, तो अगर इसकी रिएक्शन हम कार्बन से करवा रहे हैं तो कार्बन ऑफ कोर्स जाकर इस पर ऐड होगा और हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों में से किसी डबल बॉन्ड पर ये जाकर ऐड हो जाएगा CH2 C CH2 and here we will have CH2 CH2। तो इस तरह का जो एडिशन है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, 1-2 एडिशन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर जाकर के एडिशन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, 1-2 एडिशन कहते हैं। सेम थिंग हम ब्यूटाडाइईन से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्यूटाडाइईन किसका एग्जांपल हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइईन का। मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ 1,3-ब्यूटाडाइईन का, 1 2 3 4। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, बाकी जो हमारी वैलेंसी है कार्बन की वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर ही देते हैं, CH2 CH CH CH। तो जब इस पर कार्बन का एडिशन होगा, ठीक है, तो भी क्या होगा, 1-2 एडिशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर जाकर के ऐड हो जाएगा। दोनों में से किसी भी जगह आप ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो चाहे आप यहाँ पे ऐड कीजिए चाहे आप यहाँ पर ऐड कीजिए, एक ही बात होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, जहाँ पे आकर आपका ये कार्बन अटैच होगा। ओके, बाकी जो आपका मॉलिक्यूल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस तरह के एडिशन को हम क्या कहते हैं, 1-2 एडिशन कहते हैं, ठीक है। जब आपके फर्स्ट मतलब 1 और सेकंड कार्बन, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर जाकर के कोई चीज ऐड हो जाती है हमारे एल्कीन्स में, दैट इज नोन एज 1-2 एडिशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे कार्बन्स देते हैं वो कौन सी देते हैं, दे कैन डू इंसर्शन, they can do insertion in the alkanes and they can increase the length of carbon chain। Okay, so this is the next reaction which is given by the carbene। Okay, the next reaction is insertion reaction। Insertion reactions are given by carbene, इसमें alkenes, ठीक है। एल्कीन्स में वो हमें क्या देंगे, एल्केन्स में हमें क्या देंगे, वो इंसर्शन रिएक्शन एल्केन्स के अंदर, और हमारे एल्केन्स की जो चेन है उसको इंक्रीज कर देंगे। कैसे इंक्रीज कर देंगे, सपोज मेरे पास मीथेन है, दिस इज मीथेन एंड आई एम डूइंग दिस रिएक्शन विद मिथाइल कार्बन। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जाके अटैच हो जाएगा और हमें मीथेन मिल जाएगा। So the chain of carbon has been increased by 1 carbon। Moreover, this is suppose मेरे पास propane CH3 CH2 CH3, और अगर मैं इसकी रिएक्शन मिथाइल कार्बन से करवा रही हूँ तो ये जो कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन पर भी अटैच हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, ठीक है। हमें स्ट्रेट जो एल्केन है वो भी मिल सकता है और ब्रांच भी मिल सकता है। अगर ये फर्स्ट कार्बन में जाके अटैच होता है बीच में कार्बन और हाइड्रोजन है, जिससे मैं ये हाइड्रोजन यहाँ बाहर निकाल के रखती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। और अगर यही कार्बन सेकंड कार्बन पर जाकर के अटैच होता है तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH3 आइसोब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ इंसर्शन इज आल्सो पॉसिबल, कि आपका जो कार्बन है वो अलग अलग कार्बन में जाके इंसर्ट हो सकता है एल्केन्स में। ओके, so this is the reaction of carbene। So this type of reactions can be given by the carbene।
कार्बन हमें इस तरह की रिएक्शंस दे सकता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमें कार्बन देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज रिंग इंसर्शन रिएक्शन। कार्बन जो है आपके रिंग में भी एंटर होके हमारी रिंग का साइज बड़ा कर सकता है। इट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग। ये हमारे कार्बन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो लेट अस सी द रिंग इंसर्शन रिएक्शंस। ओके बच्चों, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बन्स जो अभी हम देखने वाले हैं वो क्या है, रिंग इंसर्शन, या हम उसको कह सकते हैं रिंग बड़ी हो रही है हमारी, तो वी कैन से रिंग एक्सपांशन रिएक्शन। हमारी जो रिंग है वो बड़ी हो जाए। ठीक है, तो जब हमें एरोमेटिक रिंग को या हमारे रिंग कंपाउंड को बड़ा करना होता है तो हम कार्बिन्स का यूज कर सकते हैं। तो कार्बिन जो हेलोजन वाले कार्बिन होते हैं बेटा, वो कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, उसका मैं आपको एक बता रही हूँ कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास क्लोरोफॉर्म, तो मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाऊँ, लाइक C2H5ON। तो जब हम इसकी रिएक्शन बेस से करवाएंगे तो सोडियम तो यहाँ से Cl निकाल देगा, NaCl आपका बाहर होना ही होना है। ठीक है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH अल्कोहल, और 2 क्लोरीन एटम कार्बन के पास रह जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलोजन वाला कार्बन जनरेट कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म की मदद से। इट कैन बी जनरेटेड। अब मैं इसकी जो रिएक्शन है वो किससे करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है पायरोल, आई एम हैविंग वन कंपाउंड पायरोल। ये इस तरह का जो ये रिंग कंपाउंड है हमारे पास, इसे पायरोल कहा जाता है। ठीक है, तो पायरोल से हम क्या करवाएंगे, कार्बन की रिएक्शन हम करवाते हैं। ठीक है, दैट इज CCl2 आई एम टेकिंग बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम इथोक्साइड, ये जनरेट हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये CCl2 जनरेट कैसे होता है मैंने आपको भी समझा दिया यहाँ पे। तो जब ये CCl2 यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड पर, तो एक हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा यहाँ पे, लेट अस सी NH। ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, तो ये तो सिंगल हो जाएगा, और ये CCl2 आकर के यहाँ अटैच। ठीक है, ये हमारा CCl2 यहाँ आकर के हो गया, अटैच हो गया। अब इस रिएक्शन में HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से Cl प्लस रिलीज होगा और यहाँ से H प्लस। ओके, और ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये रिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है आपका ये रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपकी ये जो 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, ये कितने मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से जा चुका है, और ये वाला जो कार्बन है ये रिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, और यहाँ पर इससे कौन अटैच है, आपका क्लोरीन। ओके, तो ये हमारा बन गया एक्सपांडेड स्ट्रक्चर। दिस इज आवर एक्सपांडेड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 क्लोरोपीरीडीन। तो ये हमारे कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिंग को बड़ा कर सकते हैं। ओके, द रिंग्स कैन बी एक्सपांडेड विद द हेल्प ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड के थ्रू इंसर्ट करता है रिंग में, उसको बड़ा कर सकता है। ओके, दिस वी हैव सीन। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द रिंग बाय यूज ऑफ कार्बन। So these are the general reactions which are given by the कार्बन्स। तो कार्बिन हमारी बहुत सारी ऑर्गेनिक की बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। जैसे कि एक हमारी रिएक्शन होती है कार्बिल एमीन रिएक्शन, एक हमारी रिएक्शन होती है राइमर काइमन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो रिएक्शन है दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे एक और रिएक्शन होती है हमारी विटिक रिएक्शन। ठीक है, एक हमारा होता है वुल्फ रिएरेंजमेंट। तो ये ऐसी रिएक्शंस है जो कार्बन मैकेनिज्म के थ्रू ही जाती है। ओके, तो जब हम नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे लेते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमने जो इतने सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बने हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन में कहाँ कहाँ बनते हैं, और कौन कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म वो गवर्न करते हैं।
बट अभी हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट ओवर नहीं हुए हैं. Still we are having two reactive intermediate, nitrines and benzines. Okay, so in next video I will cover up the next reactive intermediate. Till date आप इसको पढ़िए, बुक में से रीडिंग दीजिए and give your comment, ask your doubt if you have in the comment box. I will definitely reply you. If you got the topic, then please share to your friends and make them to subscribe the channel, hit the like button and press the bell icon. Bye bye.